Hello students, welcome back to my online class. Myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, which is situated in Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we are going to revise the topic convert to months and days. This is our topic for revision for today. And what we are going to do, we are going to convert days into months and days. And yesterday, my dear students, we have learned the process of converting seconds into minutes and seconds and days into weeks and days. I hope the process of converting is clear to you all. And today, my dear students, we are going to revise the topic convert to months and days. For this, we have to remember some points. So our first point is to convert a smaller unit to bigger unit, we should divide. Our first point is when we are going to convert a smaller unit into bigger unit. You see here days is smaller unit and months is bigger unit. So we are converting from smaller unit to bigger unit. So we should divide. And next point is 1 month equals to 30 days. 1 month is equals to 30 days. These 2 points we have to remember to convert the days into months and days. ओके स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन में कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज को रिवाइज करेंगे, जिसमें हम डेज को कैसे मंथ्स और डेज में कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जिसके लिए हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक है टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी शुड डिवाइड। जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ हम कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमको डिवाइड करना होगा। और 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज होता है, ये हमको याद रखना होगा कि 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 360 डेज। अब क्वेश्चन नंबर 1 360 डेज को सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले 360 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो पहला स्टेप है हमारा 360 डिवाइडेड बाय 30, ये हो जाएगा हमारा मंथ। तो इस तरीके से अगर हम डेज को 30 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हेन वी डिवाइड 360 बाय 30 इट विल कन्वर्ट इनटू मंथ्स एंड डेज। नाउ डिवीजन प्रोसेस, डिवाइड करके इसको देखते हैं। 360 30 से 360 को डिवाइड करते हैं तो 31 जा 30, अरे ये हो जाएगा हमारा, बचेगा हमारा 60 एंड 32 जा 60, ये हो गया हमारा 60, ये हमारा रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमको क्वोशिएंट में आंसर आया है 12। सो ये जो क्वोशिएंट है ये हमारा मंथ्स होगा, इसको मंथ्स में लिखा जाएगा, ये हो गया मंथ। और रिमाइंडर में अगर कोई वैल्यू अगर रहता है तो वो हमारा हो जाएगा डेज, उसको हम डेज में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर 0 है, तो इसलिए हमको डेज में कुछ नहीं लिखना है। तो हमारा आंसर होगा 12 मंथ्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 12 मंथ आंसर। तो इस तरीके से हम 12 मंथ्स आंसर लिख देंगे। So what we have to do, students, we have to divide the days value by 30 to get our answer. So when we divide 360 by 30 we get the answer 12. 12 is your quotient and 12 the quotient we have to write it in months. इसको months में लिखेंगे। Quotient is written as months and remainder is written as days. सो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो इसीलिए
इसीलिए डेज में हमको कुछ नहीं लिखना है, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 12 मंथ्स। इस तरीके से जो है 360 डेज को मंथ्स और डेज में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका आंसर आएगा 12 मंथ्स। Now students, let's solve another question under the same heading, convert to months and days. Second number question is 155 days. 155 days को months और days में convert करना है। दो चीजें हमें याद रखनी है। The first one is we have to divide and next one is 1 month is equals to 30 days. So let's start. So first we have to write 155 divided by 30 and it will convert it into months. Now the process of division, 155 divided by 30, so 3 5 35 are 150 and remove 5 remaining. So here you see the quotient 5 is 5 months and the remainder 5 is 5 days. So in this way, when we divide 155 by 30, we get answer 5 months 5 days. Now our answer is 5 months 5 days. 5 months 5 days is our answer. This is our answer. So इस तरीके से जब हम 155 डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो 155 को 30 से हमको डिवाइड करना होगा और जब हम 30 से 155 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 जो है कोशिएंट आएगा और 5 रिमाइंडर आएगा। तो 5 जो कोशिएंट है उसे हम 5 मंथ्स लिखेंगे और 5 जो रिमाइंडर है उसे हम 5 डेज लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 5 मंथ्स 5 days. So in this way, by dividing the days by 30, डेज के वैल्यू को 30 से डिवाइड करके हम जो है डेज को मंथ्स और डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो चीजें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी शुड डिवाइड एंड नेक्स्ट वन इज 1 month इक्वल्स टू 30 days. Okay my dear students, now our second topic for revision for today is convert to years and months. मंथ्स को कैसे ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करेंगे, आज का हमारा सेकंड टॉपिक है जिसको हम रिवाइज करेंगे। पहला टॉपिक हमने रिवाइज किया जो था कन्वर्ट टू मंथ्स एंड डेज। डेज को कैसे मंथ्स और डेज में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में हमने सीखा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कन्वर्ट टू ईयर्स एंड मंथ्स। अब यहाँ पे भी हमको जब हम कन्वर्ट करेंगे ईयर्स और मंथ्स को, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट months into years and months, we have to remember two things. The first one is to convert a smaller unit to bigger unit we should divide, and the second point is 1 year equals to 12 months. ये दो चीजें हमको इसमें याद रखनी है कि जब भी हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट पे जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको डिवाइड करना होगा और 1 year equals to 12 months होता है। ये चीजें हमें दो चीजें याद रखनी है। now we are going to convert 25 months into years and months. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 25 डिवाइडेड बाय 12 years, ये हमारा years में चेंज हो जाएगा। so when we divide 25 by 12, the value of month is converted into years, वो years में convert हो जाएगा। now let's show the division process. 25 divided by 12, 12 1 12, 12 2 24, so 1 remain. So this quotient 2 is 2 years and the remainder 1 is 1 month. So in this way, when we convert 25 months to year and months, we get the answer 2 years 1 month, यानी कि 25 मंथ्स में 2 years और 1 month होते हैं।
तो इस तरीके से 12 से 25 को डिवाइड करके हम आंसर फाइंड करेंगे। जो हमारा आंसर आया है वो है 2 years 1 month। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 years 1 month। तो जब हम मंथ को ईयर और मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमको उस वैल्यू को 12 से डिवाइड करना होगा, और जब हम 12 से मंथ्स को जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा कोशिएंट आएगा वो हमारा ईयर्स होगा, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा मंथ होगा, उसको हम मंथ्स में लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 को 12 से डिवाइड किया गया है। 25 को 12 से डिवाइड करने पे 2 ईयर, 2 कोशिएंट आया जो है हमारा 2 ईयर्स, और 1 रिमाइंडर आया है जो है हमारा 1 मंथ। तो इस तरीके से 25 मंथ्स को जब हम ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2 years 1 month। बस हमें दो ही चीज़ें याद रखनी, एक हमें डिवाइड करना है, और दूसरी चीज़ जो है वो हमको 1 year इक्वल्स टू 12 months होता है, ये हमें याद रखना है। Okay students, let's solve another question under the same heading, convert to years and months. Our next question is question number 2, 42 months. We have to convert 42 months into years and months. So what we have to do, we have to divide 42 by 12. So when we divide 42 by 12, it will convert into years. Now when division process, 42 divided by 12, 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36, so 12 3 are 36 and our remainder is 6. So you see here 3 is our quotient and 6 is remainder. 3 is quotient and 6 is remainder. Now 3 quotient is 3 years and 6 remainder is 6 months. So in this way, when we convert 42 months into years and months, we get the answer 3 years 6 months. So we can write 3 years 6 months is our answer. So this is our answer, 3 years 6 months. So इस तरीके से स्टूडेंट्स जब हम मंथ्स को ईयर और मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस वैल्यू को 12 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए 42 मंथ्स को हमको ईयर्स और मंथ में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हमने सबसे पहले 42 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू ईयर, ये लिखा है हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस फॉलो किया है, 12 से 42 को डिवाइड किया है। जब हम 12 से 42 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वोशिएंट आ रहा है 3 ईयर 3 और रिमाइंडर आ रहा है 6, और ये जो क्वोशिएंट 3 है इसको हम 3 इयर्स लिखेंगे, और ये जो हमारा वैल्यू रिमाइंडर में जो आया है 6, इसको हम 6 मंथ्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा 3 years 6 months। बस हमें दो चीजें याद रखनी है, एक हमें डिवाइड करना है, वी शुड डिवाइड, क्योंकि हम मंथ्स को ईयर में चेंज कर रहे हैं। ईयर से छोटा यूनिट मंथ्स है, मंथ से बड़ा यूनिट ईयर है, तो स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ कन्वर्ट करना है तो हमको यहाँ पे इसको डिवाइड करना होगा। और दूसरी बात 1 year इक्वल्स टू 12 months होता है, ये हमको याद रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेज इनटू मंथ्स एंड डेज and months into years and months, the both is clear to you all. आज हम लोगों ने जो प्रोसेस फॉलो करके डेज को मंथ्स और डेज में कन्वर्ट किया है, और दूसरा हमने प्रोसेस फॉलो करके जो मंथ्स को ईयर और मंथ्स में चेंज किया है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So my dear students, I hope the process is clear to you all. ये प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रोसेस से आप अन्य क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।
जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है आज मैं दूंगा, उसको आप सॉल्व करिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। बस आपको बस दो यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है इसको करने के लिए। एक है हमें डिवाइड करना है क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, और दूसरा जो हमें याद रखना है वो है 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज, और तीसरा जो हमें याद रखना है वो है 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ। बस इन चीजों को याद रखना है। और जब हम डेज को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 30 से डिवाइड करना है, और जब हम मंथ को ईयर पे चेंज करेंगे तो हमको 12 से डिवाइड करना है। बस ये हमको याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।